السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مبین الدین، ہسٹری لیکچرر گریراج گورنمنٹ ڈگری کالج نظام آباد، آپ کے سامنے سیمسٹر 6 تلنگانہ ہسٹری کا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے میر عثمان علی خان۔ میر عثمان علی خان آخری 7ویں حیدرآباد کے حکمران جنہیں نظام کہا جاتا تھا۔ ان کے والد کا نام میر محبوب علی خان تھا۔ میر عثمان علی خان کی پیدائش 16 اپریل 1886 عیسوی میں ہوئی تھی۔ آپ 1911 عیسوی میں تخت نشین ہوئے۔ ابتدا ہی سے میر عثمان علی خان ثابت قدمی سے ریاست کی باغ دوڑ سنبھالی۔ انہیں عوام اعلیٰ حضرت کہہ کر پکارتی تھی۔ نظم و نسق میں بہتری پیدا کرنے کے لیے نت نئی اصلاحات انہوں نے نافذ کی۔ ان کی حکومت کے ابتدائی سالوں میں انہوں نے مختلف صوبوں کا دورہ کیا، حالات کا بخور مشاہدہ کیا اور انتظامی امور میں کئی تبدیلیاں لائیں۔ اس زمانے میں دربار میں بازیابی کے وقت نذرانہ یا پیشکش دی جاتی تھی۔ انہوں نے دیوداسی کے رواج اور جبری مزدوری کے چلن کو برخاست کر دیا۔ انہوں نے بیلوں کی لڑائی، مرغوں کی لڑائی کو فروغ نہیں دیا بلکہ اس پر امتناع عائد کر دیا۔ دربار میں سگریٹ نوشی پر امتناع عائد کرتے ہوئے تمام عہدیداروں کو دربار میں حاضری کے لیے شیروانی اور ٹوپی وغیرہ کو لازمی قرار دیا۔ اعلیٰ حضرت میر عثمان علی خان نے 1920 میں ایک فرمان جاری کرتے ہوئے گاؤ کشی کو ممنوع قرار دیا اور گاؤ کشی یعنی گائے کے کاٹنے پر امتناع عائد کرتے ہوئے انہوں نے مذہبی رواداری کا ثبوت دیا۔ میر عثمان علی خان بہت ہی نیک دل، شریف النفس بادشاہ گزرے ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنی ملک کی ترقی چاہتے تھے، وہ اپنی سلطنت کی ترقی چاہتے تھے، عوام کی فلاح بہبود پر خصوصی توجہ دیتے تھے۔ وہ لوگوں پر حکمرانی کے بجائے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرنا جانتے تھے۔ انہی کی کوششوں کی وجہ سے، ان کے کارناموں کی وجہ سے وہ ہر دل عزیز حکمران گزرے تھے۔ انہیں نہ صرف مسلمانوں کا سپورٹ تھا بلکہ ہندو، سکھ، عیسائی، بدھ، جین اور پچھڑے طبقات بھی ان کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ میر عثمان علی خان ہندو اور مسلمانوں کو اپنی دونوں آنکھ قرار دیتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ حیدرآباد ریاست ایک دلہن کی مانند ہے اور ہندو اور مسلمان وہ کہتے تھے کہ میری دو آنکھ ہیں۔ جس طرح سے دلہن کی اگر ایک آنکھ نہ ہو تو وہ خوبصورت دکھائی نہیں دیتی، اسی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ میرے سامنے، میرے نزدیک تمام مذاہب کے ماننے والے یکساں موقف رکھتے تھے۔ اگر ہم میر عثمان علی خان کی نظم و نسق کے اصلاحات کے اگر بارے میں دیکھیں گے تو میر عثمان علی خان نے 1914 عیسوی میں ریاست کے سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ ان کے دور حکومت میں نظم و نسق کے ہر شعبے میں ترقی ہوئی۔ انہوں نے اپنے طریقے سے نظم و نسق کو روب عمل لایا، ایسا طریقہ اپنایا جس سے عوام کی فلاح بہبود بھی ہو اور ریاست کی ترقی بھی ہو۔ ان کے دور کی نمایاں خصوصیات خاص طور پر مالیہ کی تشکیل تھی۔ 1938 میں مجلس مقننہ یعنی ایک ایوان قانون ساز کونسل کی شروعات کی گئی جس میں 85 ممبر شامل تھے۔ پہلی بار اس کونسل میں انہوں نے دلتوں کو شامل کرتے ہوئے دلت دوست ہونے کا ثبوت دیا۔ انہوں نے پچھڑے ہوئے طبقات اور قبائلی علاقوں پر خصوصی توجہ دی۔ اس وقت دلت طبقے کے ساتھ بہت ہی زیادہ ناروا سلوک رکھا جاتا تھا اور جو قبائلی علاقے ہیں اس پر کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی۔
लेकिन हुजूर निज़ाम ने, मीर उस्मान अली खान ने बहुत ही खुसूसियत के साथ पिछड़े हुए तबकात, दलित और कबायली इलाकों पर खुसूसी तवज्जो देते हुए उनको भी समाजी धारे में शामिल करने की सही की। आदिलाबाद, करीमनगर, वरंगल और महबूबनगर के कबायलियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कई रियायतें और सहूलतें दी। आजिलाना फैसलों के लिए कबायली पंचायतें कायम की गईं। उनके दौर में कुमारा भीम की क़यादत में गौंड तबके ने आदिलाबाद में ज़मींदारी के खिलाफ बगावत की थी। हुजूर निज़ाम ने गौंड तबके के मसाइल को समझने की कोशिश की और उनकी माशी व फलाह बहबूद के लिए कई एक इक़दाम उठाए। अलग अलग ज़ातों से ताल्लुक़ रखने वालों को हैदराबाद में मजहबी आज़ादी दी गई। उन्होंने न सिर्फ मस्जिद बल्कि मंदिरों, गिरजाघरों, गुरुद्वारों, आशूर खानों, दरगाहों, खानखाहों और खैराती इदारों को दिल खोल कर अतियात अता किए। उनके ज़माने में हर एक को अपने मजहब पर पूरी तरह से चलने की आज़ादी थी। किसी को रोक टोक वाला मामला नहीं था और हर एक को अपने मजहब पर चलने, अपने मजहब को इख्तियार करने की आज़ादी थी। अपने मजहब के जलसे व जुलूस करने की इजाज़त थी। इसके अलावा उन्होंने आदिलाबाद के मंदिर जैसे गोलीपुरा, मादन्ना पेट मंदिरों को बहुत ही ज़्यादा तादाद में माली इनात की। भद्राचलम और तिरुपति के मनादिर को भी उन्होंने सालाना इमदाद जारी करते हुए हिंदू दोस्त बादशाह होने का सबूत दिया। आसिफ जाही दौर में मुसलमानों को उनके मुक़द्दस मुकामात यानी मक्का और मदीना को और करबला को जाने के लिए 6 महीने की पेश की रुख्सत माँ तनख्वाह अदा की जाती थी। देखिए यहाँ पर उन्होंने ना सिर्फ मुसलमानों को मक्का और मदीना के लिए जो है बाज़ाब्ता जाने की इजाज़त दी और उनके लिए खुसूसी इंतज़ामात किए। मक्का और मदीना में उन्होंने रुबात कायम करते हुए यहाँ से जाने वाले हाजियों को, यहाँ से जाने वाले लोगों को वहाँ पर ठहरने की मुकम्मल सहूलत अता की। इसके अलावा उन्होंने हिंदुओं के भी मंदिरों को बहुत सारा जो है अतियात अता किया। हुजूर निज़ाम ने कलीसाओं को ज़मीनात के अतियात मंजूर किए। उस ज़मीनात से होने वाली आमदनी उस कलीसा का खर्च उस कलीसा को चलाया जाता था। कलीसा में यानी चर्च का जो भी खर्चा होता था वो ज़मीनात से अदा किया जाता था। तो बड़ी बड़ी ज़मीनात उन्होंने चर्च को जो है बतौर नज़र की। सिक्कों को बहैसियत महाफिज और महकूमे पुलिस में खुसूसी तौर पर भर्ती किया गया। एक अजीमुशान गुरुद्वारा नांदेड़ में तामीर किया गया। नांदेड़ में जो गुरुद्वारा सिखों का मुक़द्दस मुकाम है, ख़ास तौर पर जुनूबी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिखों का मुक़द्दस मुकाम गुरुद्वारा कहा जाता है, दरअसल वो हुजूर निज़ाम की ही इनात का नतीजा थी। बाज़ाब्ता उस गुरुद्वारे की देखभाल के लिए, उसके इंतज़ाम व इंसराम के लिए उन्होंने एक जागीर भी उस गुरुद्वारे को वक्फ कर दी थी। देखिए यहाँ पर उन्होंने किसी भी किस्म का कोई भेदभाव वाला मामला अख्तियार नहीं किया। जहाँ पर मस्जिदों के लिए उन्होंने खर्च किया, मस्जिदों को बाज़ाब्ता माली इनात मंजूर किया, उसी तरह से मंदिरों को भी उन्होंने बाज़ाब्ता दिल खोलकर मदद की। ना सिर्फ मंदिरों को बल्कि गिरजाघरों को भी उन्होंने जो है अपनी खुसूसी तवज्जो दी। गिरजाघरों के अलावा गुरुद्वारों की भी जो उन्होंने तामीर करते हुए तमाम मज़ाहिब में एक सा मौक़ूफ़ इख्तियार करने का रिवाज डाला। ऐसे कम बादशाह उनको तारीख में मिलते हैं जिन्होंने तमाम मज़ाहिब को एक ही नज़र से देखा। हालांकि वो मुसलमान थे, लेकिन इसके बावजूद वो न सिर्फ मस्जिदों और खानखाहों, दरगाहों के अलावा गुरुद्वारों, मंदिरों और गिरजाघरों की भी तामीर के लिए दिल खोल कर उन्होंने अतियात किए थे। मीर उस्मान अली खान ने निज़ामाबाद के
मशहूर मंदिर कंटेश्वर मंदिर को भी उन्होंने बहुत दिल खोलकर इमदाद की। उन्होंने अवामी खिदमात के महकमे को हरमकुंडा में वाक़े 1000 सुकून वाली मंदिर की निगहदाश्त की अहकामात जारी किए। इनके दौर में हैदराबाद में बेहतरीन नज़्म व नस्क़ कायम किया गया। देखिए, इनकी सबसे अहम जो कारनामे हैं वो मजहबी रवादारी। इन्होंने किसी एक मखसूस मजहब की तरफदारी नहीं की। इन्होंने किसी एक मखसूस मजहब की बिल्कुल पूरी तरह से दिल शिकनी भी नहीं की। हर एक के साथ एक सा मौक़िफ़ रखा। अपने दरबार में हर एक को मौका दिया। अपने दरबार में हिंदुओं को भी उतना ही मौका दिया गया, मुसलमानों को भी उतना ही मौका दिया गया। काबिलियत की बुनियाद पर उन्होंने अपने दरबार में उनको मुकर्रर किया, ओहदेदार मुकर्रर किए और बाज़ाब्ता आला ओहदे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो या चाहे वो दलित हो, काबिलियत की बुनियाद पर वो ओहदों पर मामूर करते थे। ये इनका सबसे बड़ा कारनामा है। इसके अलावा उन्होंने पहली मर्तबा हैदराबाद सिटी में जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी को जो है कायम किया। जामिया उस्मानिया, जिसको हम आम जबान में उस्मानिया यूनिवर्सिटी कहते हैं, दरअसल मीर उस्मान अली खान ने उसको कायम किया, जिसका बज़रिया तालीम उर्दू था। इसके अलावा यहाँ पर अदलिया और आमेला दोनों अलहदा थे। रियासत इमदाद से पहले कौमी सनतें कायम की गई और हमलो नकल की सहूलतों को बढ़ाने के लिए उन्होंने हवाई अड्डे कायम किए, रेल के निज़ाम को उन्होंने जो है वसअत दी और कौमी शहराएँ उन्होंने पक्की सड़कें जो है बनवाई थी। उनके दौर में दूसरी जंग अजीम हुई थी, जो 1939 था, 1945 में हुई थी। पहली जंग के वक्त निज़ाम ने माली तौर पर अंग्रेज़ों की मदद की थी। इसके अवज़ में इन्हें पावर ऑफ फादर का खिताब दिया गया था। 1918 में इंग्लैंड के बादशाह जॉर्ज पंजुम ने निज़ाम मीर उस्मान अली खान को आला हजरत हिज हाइनेस का, यानी इज़्ज़त माब मुकर्रम व मुअज़्ज़म आली मर्तबा हिज एक्सेलेंस हाइनेस का जो है दर्जा दिया था। ये इनका सबसे बड़ा एक कारनामा था। अगर हम तालीम के अगर बारे में देखेंगे, 7वें फरमावा के ओहदे में शोबे तालीम नुक्ते नज़र यानी नुक्ते उरूज पर जो है पहुँच चुकी थी। यहाँ इलाकाई ज़बानें उर्दू, मराठी, तेलुगु के अलावा अंग्रेज़ी ज़बान पढ़ाई जाती थी। कई स्कूल्स कायम किए गए। तालीम निस्वां को उस दौर में तरक्की दी गई। ख़ास तौर पर लड़कियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी गई। इब्तदाई तालीम और सानवी तालीम के मदारिस कायम किए गए। इब्तदाई तालीम मुफ्त तालीम दी जाती थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अलावा यूनानी, ज़राई, हैवानात के कॉलेजेस, साइंस के कॉलेज वगैरह कायम करते हुए फ़नून लतीफ़ा कॉलेज भी वरंगल, गुलबर्गा और औरंगाबाद में कायम किया। टेक्निकल एजुकेशन को कायम करते हुए उन्होंने टेक्नोलॉजी के मैदान में ज़बरदस्त तरक्की की राह खोल दी। इन कॉलेजों की हुकूमत माली सरपरस्ती करती थी। बनारस ना सिर्फ उन्होंने हैदराबाद रियासत के हदूद में कॉलेजेस और स्कूल्स खोले, ना सिर्फ उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी खोली, तामीर की, बल्कि उसके अलावा मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटीज़ कायम किए गए, उसको भी उन्होंने दिल खोल कर जो है उसकी मदद की। उसकी ज़िंदी मिसाल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन भी शामिल है। इसके अलावा जनाना हाई स्कूल, महबूबिया हाई स्कूल, शाली बंडा स्कूल, मदरसे निस्वान, हनमकुंडा, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल वगैरह भी कायम किए गए। तो इस तरह दूसरे इलाकों के भी यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने ज़बरदस्त माली इमदाद हासिल की। और एक बात बताता चलूँ कि उन्होंने गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी तकरीबन 50,000 का अतिया दिया, जो 1956 में जो है कायम किया गया था। अगर हम सनत व हुर्फत के अगर बारे में देखेंगे, हैदराबाद में सातवें निज़ाम के दौर में
सनतों को ख़ास तौर पर उरूज हासिल हुआ। कई सनतें जैसे संगारनी कार्लिस, निज़ाम शुगर फैक्ट्री, आलमीन धाती कंपनी, हरिका टूल्स, सर सिल्क, वजीर सुल्तान तंबाकू फैक्ट्री, चार मीनार सिगरेट फैक्ट्री, कारखाना जिंदा तिलिस्मा फैक्ट्री, कैलेंडर केबल कंपनी, छोटी मसनूआत, कागज की सनतें, पार्चा पानी की सनतें, दीवान बहादुर राव गोपाल मिल, आजम जाही मिल, हयातियाती कीमियाई फार्मेसी, बिस्किट फैक्ट्री, माचिस की सनतें, अल्कोहल की फैक्ट्री, मलमल कारली की फैक्ट्री, तार की फैक्ट्री कायम की गई। दक्कन रेलवे को खास तौर पर इस्तेहकाम हासिल हुआ। रियासत में हमलो नकल की सहूलतों को फरोग दिया गया। हमलो नकल की सहूलतों और तमाम कारखानों की वजह से अवाम को ज़बरदस्त रोज़गार के मौके हासिल हुए। इन्हीं की कोशिशों की वजह से हैदराबाद रियासत बहुत जल्द न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि दुनिया की माशी एतबार से सबसे बेहतर पोजीशन वाली रियासत बन गई। अगर हम तामीरात के बारे में देखेंगे तो मीर उस्मान अली खान ने तामीरात पर खुसूसी दिलचस्पी ली। उन्होंने उस ज़माने के शानदार इमारतों में दक्कनी ख़यालात, कल्चर, तहजीब व सकाफ़त का पता देता है। जामे उस्मानिया दवाखाने की तामीर में मुग़ल आर्ट, हिंद तुर्की तर्ज तामीर की झलकियाँ हमको नज़र आती हैं। हाई कोर्ट की इमारत भी हिंदुस्तानी और तुर्की आर्ट का हसीन इम्तिजाज हमको देखने को मिलता है। हैदराबाद की असम्बली की इमारत भी इंडो तुर्की और राजस्थानी तर्ज पर तामीर किया गया। दूसरी इमारतें जैसे सिटी कॉलेज, बाग़े आमा, यूनानी दवाखाना, आसिफिया कुतुब खाना, हैदराबाद और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, टाउन हॉल, एडन बाग, जुबली हिल, जोड़ी मस्जिद, ये तमाम हिंदू, मुस्लिम और मगरबी तर्ज के बेहतरीन तर्ज तामीर के नमूने हैं। शहरी तरक्की बोर्ड कायम किया गया जिसके तहत बागात लगाए गए, तामीरी बाजार बनाए गए और कुशादा गलियां तामीर की गईं, नालियां और ज़ेर ज़मीन निकासी बनाया गया। उस्मान अली खान एक हमाजाहिद शख्सियत के हामिल, तरक्की याफ्ता फरमारवा बादशाह थे। उन्हें सुल्तानुल उलूम भी कहा जाता है। उनकी बसीरत बहुत अमीक थी। वो एक बसीरत अफरोज हुक्मरान और शऊर आगाही रखने वाले हुक्मरान थे। वो माहिर लिसानियत थे। इन्हें 6 ज़बानों पर मुकम्मल उबूर हासिल था। उन्हें उर्दू के अलावा तुर्की, फारसी, अरबी, अंग्रेज़ी और तेलुगु पर भी ज़बरदस्त कुदरत हासिल थी। वो दुनिया के अमीर तरीन इंसान थे। सबसे ज़्यादा दुनिया के रिचेस्ट पर्सन थे। इनके दौर में तालीम, सेहत आमा, शहरी व देसी तरक्की, ज़राअत, सनत व हुर्फत, तिजारत, हमलो नकल, ज़राए तरसील व इबलाग के मैदान में बहुत ज़बरदस्त तब्दीलियाँ हुई। इनकी फलाही स्कीमात से हैदराबाद का काया ही पलट गई और तमाम तबक़ात को तरक्की के मसावियाना मौके हुकूमत की जानिब से फराहम किए गए। तेलंगाना हैदराबाद की देसी हुक्मरानों की रियासत का हिस्सा था। इसके बड़े हिस्से पर वो काबिज थे। हिंदुस्तान के वसत में वाक़ अहम फ़ौजी हुकूमत थी। 1724 में ये हुकूमत निज़ामुल मुल्क आसिजा अव्वल की मातहती में आई। इनके वसाल के बाद तख्त नशीनी के लिए उनके बेटे में नवासे में जो है रसाकसी शुरू हुई। बहरहाल ये आसिफ जा अव्वल के ज़माने की बात थी। बहरहाल मीर उस्मान अली खान का दौर हैदराबाद रियासत के लिए बहुत ही शानदार दौर था। उनके दौर में ना सिर्फ तालीमी मैदान में तरक्की हुई बल्कि टेक्नोलॉजी के मैदान में भी तरक्की हुई। औरतों की तालीम, लड़कियों की तालीम पर ख़ास तौर पर तवज्जो दी गई। पोस्ट ऑफिस, पोस्टल पर भी जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो है तवज्जो दी गई और हमलो नकल पर भी जो है बहुत ज़्यादा तरजीह दी गई। बड़े बड़े तिजारती मराकिज़ कायम हुए।
ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज कायम होने से, सनतें कायम होने की वजह से अवाम को ज़बरदस्त रोज़गार हासिल हुआ। इसके अलावा निज़ामाबाद ज़िले में निज़ाम शुगर फैक्ट्री कायम करते हुए उन्होंने एक ज़बरदस्त इलाके की तरक्की की जानिब जो है गामज़न किया। उस वक्त द निज़ाम शुगर फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी शुगर फैक्ट्री थी। बाज़ाब्ता इस शुगर फैक्ट्री के मुलाजिमीन की रिहाइश के लिए एक कानूनी ही बसाई गई जिसे शक्कर नगर कहा जाता था। 24 घंटे वो फैक्ट्री चलती थी जिससे हजारों लोग और उनसे जुड़े हुए हजारों खानदान पलते थे। फिर इसके अलावा उससे जुड़ी हुई जितनी भी बड़ी बड़ी जो है जमीनें थी उसके इहाते में कई गांव थे। दूर दूर के गांव के किसान अपनी खेती बाड़ी में गन्ना उगाते हुए गन्ना वहां पर जो है लाकर डालते थे जिससे उनको भी जो है खातिर आमदनी होती थी। इसके अलावा उन्होंने किसानों को खुशहाल बनाने के लिए खेती बाड़ी ज़राई शोबे में ज़बरदस्त तरक्की के लिए उन्होंने निज़ाम सागर प्रोजेक्ट बनाया जो आज भी जो है उनकी शान शौकत की जो है इजहार करता है। निज़ाम सागर डैम जो बनाया गया, जो प्रोजेक्ट बनाया गया, उससे कई लाख एकड़ ज़मीन सैराब की जाती थी जिससे उस इलाके के कई हजारों खानदान किसान जो है पलते थे। ये उनका जो है सबसे बड़ा कारनामा है। इसके अलावा निज़ामाबाद ज़िले में अली सागर जो डैम है, जो कैनाल है, वहाँ पर भी जो है उन्होंने अली सागर को कायम करते हुए निज़ामाबाद शहर को पीने के पानी का मसला हल किया। ये भी जो है उनका बहुत बड़ा जो है कारनामा है। इसके अलावा उस डैम से, उस प्रोजेक्ट से उन्होंने कैनाल भी जो है जारी की जिससे लाखों एकड़ जमीन जो है सैराब होती थी, जो आज भी जो है वो कैनाल मौजूद है। गर्ज ये कि हुजूर निज़ाम का दौर बहुत ही शानदार दौर था, बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि मजहबी एतबार से, समाजी एतबार से, तहजीबी एतबार से, माशी एतबार से उसका कोई सानी नहीं था, उसकी कोई मिसाल के बराबर कोई रियासत नहीं थी। तो लिहाजा मैं इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पेश होऊंगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।